Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is your instructor Anika Mazambil, and today we are going to start our second lecture from the chapter number 7. We all know the title of our chapter is World Wide Web. In the previous class, we have discussed a little bit about. I just told you that what we are going to learn in this chapter. Basically, we are going to learn a new language, that is a programming language, that is HTML, and we are going to learn how to create a website using this HTML language. And we have discussed some different terms of World Wide Web as well, and we have discussed what it is itself. So let's start with today's lecture. I will revise a bit from the previous lecture. Some different terms we discussed in the previous class were web server, web pages, website, and web browser. These are some different terms that are related to World Wide Web. Today we are going to discuss the rest of those were left basically. So let's revise what web server, web page, website, and web browser is. Web server is basically a main server where all the data of website is being stored. Web page is the one page of any website. Website is the collection of different web pages, just like a book. A book is a collection of different pages. A website is a collection of different web pages. Web browser is basically an software that is used to access internet. जिसके examples आपके पास Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox है. Search engine, URL, homepage, and web hosting. This is what we are going to learn in today's lecture as well, and we are going to learn the types of some different websites, and we are going to discuss them one by one with their examples. So start with URL. I have told you earlier a bit that URL is basically the address. Any website that we are going to access, it has some address. कोई भी जो website है वो हमने access करनी है तो हमें उस website का नाम, उसका address पता होगा. जैसे हम अगर federal board की website access करना चाहते हैं तो we must know its address, that is www.fbisc.edu.pk. ठीक है, तो ये जो address होता है that is basically your URL. It is also known as Universal Resource Locator. It is what it is the address of any file or website that we are going to access through internet. It basically loads the web page that we have requested from the web server and displays it in front of you. It has three parts: protocol, resource name, and file path. I have tried to mention these three parts on the specific area जो हमारे पास नीचे आपको नजर आ रहा होगा एक linked form में. आई एम जस्ट पॉइंटिंग माई कर्सर हेयर, जस्ट लुक एट दिस. ये आपके पास मैंने एक एड्रेस टाइप किया है. दिस इज द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट. आपको यहाँ से इसमें ये जो फर्स्ट चीज़ है HTTPS, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू डाउनलोड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट. दिस इज called protocol HTTPS. दिस इज कॉल्ड द रिसोर्स नेम. रिसोर्स नेम में आपके पास डोमेन नेम और डोमेन टाइप भी आती है. रिसोर्स नेम से हमें पता लग रहा है दैट इज फेडरल की वेबसाइट है, ठीक है. और जो edu.pk है दैट इज योर डोमेन नेम एंड डोमेन टाइप. अगर ये एजुकेशनल वेबसाइट है तो ये एजुकेशन edu डॉट लिखा हुआ है, ठीक है. और अगर हमारे पास ये कमर्शियल कोई वेबसाइट है या टीवी टेलीविजन की कोई वेबसाइट है तो वहाँ पे उससे रिलेटेड डोमेन जो है वो नेम लिखी जाती है. सिमिलरली वेबसाइट के आगे जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रही हूँ, वेबसाइट के ऊपर मैंने अगर किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया है तो दैट लिंक इंक्लूड्स द फाइल पाथ part of URL, तो वो आपके पास file path कहलाता है. So these are basically three terms that are being used in URL. URL is your address through which you access a website. It consists of three parts: protocol, resource name, and file path. Protocol is the transfer protocol that is used to transfer information from the internet, whereas resource name tells the name of website and it tells its domain name, that what kind of website we're going to open. And the rest of the path shows the file name. File path shows it shows the file path that we are going to access. Okay, moving on to the next term of World Wide Web, that is search engine. Search engine is basically a software. Yeah, it is basically a program that is used to access information from the internet. हमारे पास बेशक अगर हमारे पास वेब ब्राउज़र मौजूद है, हमारे पास वेब साइट का एड्रेस मौजूद है, लेकिन हम
हमारे पास अगर सर्च इंजन ही नहीं मौजूद जिसके अंदर हमने वो एड्रेस टाइप करना है, तो देयर इज नो वे दैट वी कैन access the website basically. So we must have a search engine. There are two basically and commonly used search engine, that is Google and Yahoo. Google is mostly used. कोई भी चीज अगर हम नॉर्मल रैंडम भी बात करें, जी फलानी चीज नहीं पता तो आप गूगल कर लें, आपको ये नहीं पता तो आप गूगल कर लें. So Google is your search engine that links your कंप्यूटर टू द इंटरनेट. ठीक है, गूगल के अंदर ही जाके आप गूगल को आप एक्सेस करते हैं थ्रू वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर भी आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, उसके ऊपर जाके आप लेट सपोज गूगल टाइप करते हैं तो गूगल का आपके पास ये फ्रंट पेज आ जाता है. दैट इज योर सर्च इंजन. और जो भी हमने कोई चीज सर्च करनी है, अगर हमें उसका प्रिसाइज एड्रेस नहीं पता, हमें सिंपल एक नाम भी पता है, तो हम गूगल के ऊपर अगर उसको टाइप करेंगे तो उससे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, गूगल उसको रिट्रीव करके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा. तो सो मोस्ट कॉमनली सर्च इंजन्स आर Google and Yahoo. You can search about any topic, about any article. You can search any kind of information using these search engines. The next one is home page. Obviously the first, और जो किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो, जो फर्स्ट पेज आपके पास डिस्प्ले होता है, दैट इज योर होम पेज. अब एक वेबसाइट के ऊपर आपके पास मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं. ठीक है, जैसे एक बुक है तो बुक के अंदर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं. ठीक है, तो बुक का जो फ्रंट पेज होगा वो होम पेज जैसे कहलाता है. तो इसी तरीके से जो भी वेबसाइट हमने ओपन की, उसका जो फर्स्ट पेज हमें शो होता है, दैट इज द होम पेज ऑफ एनी वेबसाइट. और इसको हम किसी भी ऑब्वियसली सर्च इंजन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन सी अ पिक्चर हेयर, इट शोज द होम पेज ऑफ अ PTCL website. PTCL is telecommunication company, we all know. They also have a website. So I have searched their website on the internet using Google, which is our search engine. So this is the website of PTCL, and this is the home page of PTCL. Any page that shows on very first after loading any website is the home page of that particular website. The next one is web hosting. Hosting से अगर हम देखें, host कौन होता है? The one who holds the gathering, holds the party. Sorry. तो वेब होस्टिंग में हमारे पास आपके पास जो डोमेन नेम होता है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का, जो आपके पास उस वेबसाइट को होस्ट करता है. जो वेबसाइट को किस तरीके से होस्ट करता है, हमने वेब सर्वर की बात की थी. अब वेब सर्वर के ऊपर डाटा तो सेव है, तो वेब होस्ट क्या करता है, जब यूजर रिक्वेस्ट करता है एक वेबसाइट को, तो वेब होस्ट वेब सर्वर से डाटा उठाकर यूजर को वो डाटा सेंड करता है. अब आपके पास बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके पास वेब होस्ट्स मौजूद होते हैं. वो कंपनीज क्या करती हैं, वो आपसे पैसे लेकर आपको वेब होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, आपको डोमेन नेम देती हैं. देखिए, कोई यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अगर वेबसाइट बनाई है, मैं सबसे पहले चेक करूंगी कि वो वेबसाइट काम कर रही है या नहीं. अब मैं चाहती हूँ कि वो वेबसाइट बाकी लोग भी एक्सेस कर सके थ्रू इंटरनेट, तो मुझे उसके लिए वेब होस्ट परचेज करना पड़ेगा. कि जैसे मेरी वेबसाइट के आगे अगर मेरी एजुकेशनल वेबसाइट है तो मैं उसकी डोमेन नेम .edu लिखूंगी, या अगर मेरी न्यूज़ की वेबसाइट है या मेरी टेलीविजन की वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के साथ मैं .tv की डोमेन लगाऊंगी. तो आपके पास जो, मैं उसको फिर क्या करूंगी, उसकी वेब होस्ट का वो जो डोमेन नेम है वो मैं वेब होस्ट से परचेज करूंगी. वी हैव डिफरेंट कंपनीज जो हमें वेब होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं और उसके बदले में वो आपको चार्ज करते हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं. तो यू हैव टू पे अ हैवी अमाउंट टू परचेज अ वेब होस्ट. वेब होस्ट फिर क्या करता है, आपकी उस वेबसाइट को वेब सर्वर के ऊपर सेव कर देता है. और इंटरनेट से जब यूजर्स जो हैं आपकी, या वो कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट सर्च करना चाहते हैं, तो वेब होस्ट उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डाटा वेब सर्वर से उठाकर यूजर को डिस्प्ले कर देता है. Obviously we need a permanent internet connection and we also need a web host for any kind of website. Here is a picture, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक साइड पे वेब होस्ट है और दूसरी साइड पे वेब साइट है. डोमेन नेम जो है वो वेब होस्ट को मिला हुआ है. वेब होस्ट वो वेबसाइट उठा के जितने यूजर्स ऑनलाइन उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
यहाँ पे देखें जितने यूजर्स वो रिक्वेस्ट करें उनको सारा वो डाटा दे रहा है। सिर्फ आपके पास वेब सर्वर होना मौजूद नहीं है, यू ऑल्सो नीड अ वेब होस्ट। वेब होस्ट हमें डोमेन से पता लगता है। डोमेन क्या होती है मैं आपको पीछे एक एग्जांपल से बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो चीज है .edu.pk, दैट इज योर डोमेन नेम, जो बता रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट इट इज एन एजुकेशनल website. So you also always have to purchase a domain name in order to publish your website. So that's all with the topic of terms that are being used in world wide web. So हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। फर्स्ट इन इसके चैप्टर में हमने बेसिकली वेबसाइट ही क्रिएट करनी है। तो हमने पहले वेबसाइट की डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, क्या क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, वेब पेजेस क्या है, वेबसाइट क्या है, यूआरएल क्या है, होम पेज क्या है। We are done with those concepts. ठीक है, if you find any difficulty you can just watch this lecture or watch the previous lecture. इस lecture का first half and the full previous lecture you will get to understand these topics. So moving on to the next topic, that is types of website. We must know what kind of websites do we have and what is their functionality. So we have some different types. These includes web portal, news website, informational website, educational website, business website, and entertainment website. So far we have 6 types of websites, and one by one we are going to discuss what kind of function they basically perform. So how many types do we have here? We have 6 types: web portal, news website, informational website, educational website, business website, and entertainment website. For your understanding, you can just guess that what kind of function these website could possibly be performing. Again, information website, that obviously means that is going to provide us information about some sort of topic. And if there is education website, is it would obviously provide us an educational content. So we are going to discuss them one by one. It's not any difficult. You if you have a basic understanding by the name, you can just write the content, और आप इसी से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये वेबसाइट्स का क्या काम है. First of all is basically web portal. Web portal provides this variety of services that is basically linked to any news network. It can be linked with any kind of university, any kind of school. अब ये जिस वेबसाइट के साथ, ये जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक होता है, हमें उसी से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ वेब पोर्टल ऑफ अ स्कूल वेबसाइट. तो उस वेब पोर्टल पे उस स्कूल के बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी, जैसे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है, उनको ट्यूशन फी कितनी है, उनको कॉलेज, ये जो भी स्कूल है वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है, स्कूल की क्या न्यूज़ हैं, स्कूल के क्या रिजल्ट हैं, तो उस वेब पोर्टल पे वो वाली चीज़ उस स्कूल से रेलिवेंट हमारे पास डिस्प्ले होगी. यहाँ पे जो मैंने एक एग्जाम्पल आपके पास शेयर की हुई है, दैट इज अ वेब पोर्टल ऑफ a university named NUST. तो नस्ट का हमारे पास वेब पोर्टल है. इस पोर्टल के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में अगर वो कोई कोर्स रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो ट्यूशन फी पे करना चाहते हैं. आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताऊं कि जब आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो आपके पास हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है. ठीक है, रिजल्ट कार्ड आपको जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाता है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल के ऊपर आपके यूजर नेम और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो आपका रोल नंबर होता है उसके साथ आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है. अब जो आप कोर्सेज ले रहे होते हैं, रजिस्टर करवाए होते हैं, वो आपके उस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं. आपने कितनी फ़ी पे की है, आपके किस सब्जेक्ट में क्या रिजल्ट है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके उस पोर्टल के ऊपर होती है. तो वो जो पोर्टल जिस भी यूनिवर्सिटी का है वो उसी से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर रहा होता है, उसी से रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन. अगर आपको यहाँ पे थोड़ी समझ नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सर्च करके दिखा देती हूँ कि हम इसको सर्च कर लेते हैं इंटरनेट पे कि न्यूज़ पोर्टल जो है वो क्या होता है. हमने नस्ट के पोर्टल की बात की, तो ये अभी जो मैंने ओपन किया है ये बेसिकली क्या है, ये गूगल क्रोम है. गूगल क्रोम हमारे पास वेब ब्राउज़र है और उसके अंदर ये गूगल आगे ओपन हुआ है. ये गूगल क्या है, सर्च इंजन है. यहाँ पे मैं यूआरएल जो एड्रेस टाइप करूँगी, तो मैं किसके बारे में सर्च करना चाह रही हूँ, नस्ट
पोर्टल के बारे में, ठीक है। उसको मैंने सर्च किया, उसने उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गेट की और यहाँ पे शो कर दी। अब यहाँ पे मेरे पास सामने पोर्टल शो हो रहा है, उसको मैंने ओपन किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजर नेम है, पासवर्ड है। अगर तो मैं नस्ट की स्टूडेंट हूँ तो मैं ऑब्वियसली मेरा एक अकाउंट क्रिएट हुआ होगा और मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन कर सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यू स्टूडेंट्स लेट सपोज वो रजिस्टर करना चाह रहे हैं, जो न्यू एडमिशन होने हैं उनके लिए उनकी टीम की तरफ से मैसेज है नस्ट के बारे में, उनकी डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में, उनकी ट्रेनिंग्स कौन कौन सी चल रही हैं। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट देम फॉर फर्दर क्यूरीज तो आप यहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेबसाइट बट इट इज वेब पोर्टल विच इज अ टाइप ऑफ अ वेबसाइट। वेब पोर्टल आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हो सकते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। सो कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम वेबसाइट की टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। वी आर डन विद द वेब पोर्टल, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज न्यूज वेबसाइट। So the name tells the function of this website. In news website, it would obviously represent information, some events or some opinions about the current operations that are going on in your country or your territory. तो आपके पास डिफरेंट जो भी आपके मुल्क में जो जो स्टोरीज हो रही होती हैं उनको डिस्प्ले करना, उनको पब्लिश करना। जो व्यूअर्स हैं अगर उन्होंने कोई कंटेंट देखना है और उन्होंने अपना कोई कंटेंट शेयर करवाना है, द वेबसाइट आल्सो अलाउज देम टू पोस्ट देयर ओन व्यूज। आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो यूजर्स को अलाउ करती हैं कि वो वहाँ पे कमेंट्स करें कि वो क्या देखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज या अगर उन्होंने कुछ अपना कोई कंटेंट क्रिएट किया हुआ और किसी वो न्यूज़ वाली वेबसाइट को चाह रहे हैं कि वो पब्लिश करे तो वो उनसे कांटेक्ट करके वो भी पब्लिश करवा सकते हैं। तो जो करंट इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो आपको न्यूज़ वेबसाइट्स बताती हैं। आपके पास मैंने दो यहाँ पे एग्जाम्पल शेयर किए हैं, एक पाक ट्रिब्यून है और एक nation.com पीके है। यहाँ पे भी मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की पिक्चर लगाई है। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे आज की जो दिन की अपडेटेड न्यूज़ है वो साइट पे शो हो रही है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनी लिंक और उससे रेलिवेंट जो भी न्यूज़ होगी आप उसको सुन सकते हैं। We have plenty of websites, plenty of news websites. These are only two that I have mentioned here. Moving on to the next topic, that is informational website. Any kind of website that provides you information about any article. That information could be in the form of text, videos, pictures, graphics. वो आपके पास वेबसाइट कहलाती है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। आप किसी बंदे के बारे में किसी की हिस्ट्री सर्च करना चाह रहे हैं, आप इंटरनेट पे उसका नाम लिखेंगे, आपको जो सबसे पहला लिंक नजर आएगा दैट वुड बी ऑफ अ विकीपीडिया। विकीपीडिया का लिंक आपको शो होगा। This is the most commonly used information website. It includes the information like कि उसके thousands, it has thousands of articles. हर लैंग्वेज के अंदर हर टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन विकीपीडिया के ऊपर मिलेगी। लेट्स सपोज आप सर्च करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देती हूँ कि आप गूगल के ऊपर जाके कायदे-आज़म को सर्च करें। आप 100% श्योर कि जो पहला लिंक आपको शो होगा अगर क्लिक करेंगे तो वो आपको विकीपीडिया का ही शो होगा। सो इट इज अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट एनी काइंड ऑफ टॉपिक। सो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। आई हैव शेयर्ड देयर लोगो। तो मैं बल्कि आपको इसकी एक एग्जांपल मैं दिखा भी देती हूँ। नो बट यू हैव टू डू दैट बाय योरसेल्फ। लेकिन आपको इस तरीके से फिर लर्निंग क्या होगी, जैसे मैंने आपको वेब पोर्टल के दिखा दी, सिमिलरली यू हैव टू go and search for the Qaeda-Azam and you need to update me about this. Okay, moving on to the next topic, that is educational website. As the name depicts that it would be about some educational sort of thing. So any website that provides you with educational stuff that is created for educational purpose is educational websites. It can include some kind of video lectures. It can
include some kind of presentations, some tutorials over different topic for different classes for different subjects. So these websites are called educational websites. You have seen that we are used to share some videos related to a Sabak website. So we have Sabak website as a educational website. Similarly, we have Ilm Ki Dunya website. You can just click on them and you can find the content relevant to your सब्जेक्ट. आप उनके ऊपर जाएं, इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको अपनी क्लास से अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके ऊपर मिल जाएगी. तो ऐसे तमाम वेबसाइट्स जो एजुकेशनल पर्पस जिसके ऊपर वीडियोस ट्यूटोरियल्स हों जिनसे आप अपने सब्जेक्ट के बारे में सीख सकते हैं, दोज वेबसाइट्स आर कॉल्ड एजुकेशनल websites. Okay, moving on to the next topic, that is business website. Business website is used for business purpose, for carrying out the business activities online. इसकी एक बेस्ट एग्जांपल इज जो यहाँ पे मैंने शो की हुई है, दैट इज योर PIA इंटरनेशनल एयरलाइन. व्हाट यू कैन डू, you can just get online reservation for international and within the country travel by just visiting their website and booking your seat from there. तो बिजनेस एक्टिविटीज को इंटरनेट के थ्रू रन करने के लिए जो वेबसाइट यूज की जाती हैं, दोज वेबसाइट्स आर बिजनेस वेबसाइट्स. इनके ऊपर जिस किस्म की वो बिजनेस वेबसाइट है उसके ऊपर उसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स, वो किस किस चीज़ में डील करती है, उनकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनके शेयर्स होल्डर कौन है, आप उनको किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनकी इवन दे कैन कांटेक्ट विद देयर कस्टमर विद देयर सप्लायर्स थ्रू दी website. So website those are used for business purpose are known as business websites. Moving on to the hopefully last topic for today, that is entertainment websites. The website that provides you any kind of entertainment. Either you play games using those websites, either you watch movies, either you watch songs, either you watch sport, either you watch some fashion show, either you watch some television show. All those websites that are that perform some or gives you some entertainment facility are known as entertainment website, which you can use in your leisure time or to relax in your mood. और या फिर आप इंटरनेट के ऊपर आप जैसे टीवी देखते हैं, ठीक है, आप टीवी के ऊपर ड्रामा देख रहे हैं, किसी तरीके से आपका वो ड्रामा मिस हो गया है एंड यू वांट टू री वॉच दैट एपिसोड, तो आप सिंपल इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट है, आप वहाँ जाके उस ड्रामा को सर्च करके उससे रेलिवेंट जो भी एपिसोड थे उसको देख सकते हैं. तो ऐसी तमाम वेबसाइट जो आपको एंटरटेनमेंट की कोई भी फॉर्म जो है वो provide करते हैं, those websites are entertainment website. I have shared the basic and most commonly used entertainment website, that is YouTube. YouTube के ऊपर आप किसी किस्म, आपने कुकिंग करनी है, आपने फैशन डिजाइनिंग सीखनी है, आपने मेकअप का कोई ट्यूटोरियल देखना है, आपने कोई किसी गेम के बारे में कोई लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है, आपने कोई ड्रामा देखना है, आपने कोई न्यूज़ देखनी है, आपने किसी भी आपके पास हर पर्पस के लिए वो वेबसाइट जो है वो यूज़ हो सकती है और हर किस्म की एंटरटेनमेंट भी वो आपको प्रोवाइड करती है. सो दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स आर कॉल्ड एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स. आई हैव शेयर्ड टू वेबसाइट्स हियर, जैसे स्पोर्ट्स की है और यूट्यूब है. सो वी हैव अ लॉट ऑफ द वेबसाइट्स रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट वेबसाइट. So these that's all for today. These all were the types of website we have discussed so far. कितनी हमने types पढ़ी? 6 types: web portal, news website, information website, educational website, business website, and entertainment website, and we have seen their examples as well. I would request you all to follow the big book as well. बुक के ऊपर भी आपके पास डिफरेंट कंटेंट मौजूद है. आई ट्राई टू कवर द मेन पॉइंट्स हियर. अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाते हैं तो आप बुक से सिंपल इन पॉइंट्स को मार्क कर लें. एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक, यू नीड टू री वॉच दिस वीडियो एज इट इज अवेलेबल टू यू. तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आप बुक से भी कंटेंट रीड करें स्टिल, और जो मैंने आपको चीज़ कही है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें. विकीपीडिया की जो एग्जांपल मैंने आपसे कही है, जो मैंने आपको होम टास्क दिया, आप उसको ज़रूर सर्च करें. एंड यू नीड टू शेयर द रिजल्ट्स विद मी. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफिज़.